A very good morning to all my dear students. As in the previous video or in the previous lecture, we have completed our chapter number 11, right? So previous chapter 11 में हमने क्या स्टडी किया था बेटा? ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, right? Now today we will discuss and we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, money. Before that chapter, see one activity which I gave you yesterday. This activity is there. In this activity, what you have to do to make a parallelogram, rectangle, square and rhombus using set squares. मीन्स आपको क्या करना है बेटा, देखो आपको डिफरेंट जो एंगल्स है फर्स्टली वो कट करने हैं डी की हेल्प से. पेपर पे एंगल ड्रॉ करोगे एंड दैट यू विल कट. आफ्टर दैट रिक्वायर मीन्स, जहाँ पे देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको एक्टिविटी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट वन है पीसेज ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री set squares. 4 pieces of 45 degree, 90 degree and 45 degree set squares, pencil, eraser, etc. By placing the set square in different positions, make the following figure. Square means जो आपके angles होंगे that will be like of this form. Paste them in your scrapbook. Right, there are some instructions given to you that you have to follow and try to make this project in your scrapbook. After this, one more project is given to you to classify the given triangles into scalar, isosceles and equilateral. So, as you already knows about scalar triangle what are, isosceles what are and equilateral what are. So this also you have to try to do. See the requirements also given here. Cutouts of the triangle means कि आपको कैसे कट करने हैं, what you have to do. This project also you will draw in your scrapbook. Those who have not understand about these projects, they can ask me, and if you know then do these two projects before 10 of October and submit me personally. Send the video or picture of your scrapbook. Clear this one. ये two projects है बेटा, about angles and about the sides of triangle. ये दोनों projects आपको अपनी scrapbook में करने हैं and 12 अक्टूबर से पहले आपको ये 10 अक्टूबर से पहले आपको ये सबमिट करवाने. Now let's about chapter 12, money. So everyone knows what is money. Money is beta rupees, dollar, right? They all are the money. इंडियन करेंसी में जो है हम मनी को रुपीज़ में रुपीज़ में ये करते हैं, बोलते हैं जो हम लोग normally how many rupees you are having, right? In other countries they are also having their currency. Different countries having different type of currencies, like dollar is there, right? So सबकी बेटा अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अलग अलग करेंसी है. वही करेंसी क्या होती है आपकी, मनी. ये नहीं है कि डिफरेंट करेंसी है तो आप उसको मनी नहीं बोलेंगे, नहीं, करेंसी कोई भी हो. रुपीज़, डॉलर जो है वो आपके किस में काउंट होंगे, मनी में. क्लियर. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर. इन क्लास 4th you have learned how to add and subtract two amounts of money. राइट, क्लास 4 में आपने स्टडी किया था कि आप मनी को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. We have also learned how to multiply and divide an amount of money by a number. And how you will multiply and divide the money by the number.
नाउ वी शैल लर्न हाउ टू डू द सेम विद बिगर अमाउंट्स ऑफ मनी। अब हम क्या लर्न करेंगे बेटा, अभी अप टू 4th क्लास आपने जो है वो 4 डिजिट्स के नंबर को ऐड किया होगा, सबट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद द बिगर अमाउंट्स। Now, before we go ahead, let us recall what we have learned in the previous class. So, previous class में आपने क्या क्या learn किया होगा? 4th class में I hope you also knows what you have learned about money. In this exercise 12.1, in class 4th, you have learnt how you will convert rupees to paise, paise to rupees, right? Then add, subtract, multiply and divide. Plus, this is about class 4th and that is of small digits. Now in class 5th what you will learn? देखो बेटा, ये जो कन्वर्जन है ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आपका क्लास 5th में क्या आएगा जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, दैट विल बी, फर्स्टली तो आपका होगा सेम एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सेम प्रोसेस जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं अब तक, ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन अमाउंट्स, राइट? आफ्टर दिस सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इज वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अमाउंट्स, राइट? सेकेंड टॉपिक इज आवर word problems. Third one which we will study in this class, third one is beta estimation, estimating money, estimating money. Fourth one, unitary method. यूनिटरी मेथड में क्या होता है आपको कि उसी से रिलेट की हुई चीज़ की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है। जैसे आपको गिवन होगा यूनिटरी मेथड, सी हमने 4th क्लास में भी किया था अगर आपको रिमेंबर हो बेटा, जिसमें आपको 4 या 5 थिंग्स के बारे में अमाउंट गिवन होता है कि जैसे जो आपके 5 कॉस्ट ऑफ 5 मार्कर इज ₹125 and we have to find the cost of 20 marker, right? Clear this one? तो इसके लिए हम क्या करते थे, फर्स्टली हम 1 मार्कर की जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, राइट? पहले हम 1 मार्कर की कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, फिर हम उसको जो प्राइस आता था उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये मेथड जो होता है आपका यूनिटरी मेथड होता है। रिमेंबर दिस, we have done in 4th class also about this unitary method. As much I remember, there is only one exercise and that is also chapter 12 according to me. Now 5th one, 5th जो topic होगा that we will do in this is cost price and selling price. Cost price, selling price. Then in this only profit and loss. इसी टॉपिक के अंदर टॉपिक नंबर 5 में हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अगर कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस में हम कोई चीज़ बाय करते हैं। इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, या आप जैसे अब ये मार्कर है, मैं आपको सेल कर देती हूँ इस मार्कर को, तो जिस कॉस्ट पे मैंने ये मार्कर ख़रीदा है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे मैंने आपको ये मार्कर दिया दैट इज़ सेलिंग प्राइस। क्लियर? जिस प्राइस पे आप कोई चीज़ लेके आते हो वो तो क्या होता है उसका, अगर आपको थर्ड पर्सन को वो देनी हो,
ऐसा नहीं है कि अब ये मार्कर मैं लेके आई हूँ और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो जो प्राइस मैंने लगाया वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा, नो। अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई बॉट दिस मार्कर फॉर शॉपकीपर द मनी विच आई गिव, जो मैंने 25 रुपीज़ दिए थे वो क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए, राइट। तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपके तब वर्क करते हैं बेटा जब आप किसी थर्ड पर्सन को, आप मीडिएटर हो, सामान आपने लिया और किसी और को दिया तो आप क्या हो गए एक तरीके से मीडिएटर। प्रॉफिट कब होता है जब मैं इसको 20 में खरीदती हूँ और आपको 25 में सेल करती हूँ, वहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, मैं 20 में खरीद रही हूँ और आपको 15 में दे रही हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है लॉस। क्लियर दिस टॉपिक। आफ्टर दिस टॉपिक द सिक्स्थ वन इज अबाउट द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, राइट। मीन्स सीपी और एसपी में परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड 7 टॉपिक इज अबाउट द बिल। मीन्स जो आपको शॉप्स पे बिल दिए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, हाउ दो मेड इट, हाउ यू विल फाइंड फ्रॉम द बिल कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। So these are the 7 topics which we will do one by one. So remember this thing बेटा, आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा we will use the operations and amount. So today is 4th October. 7 टॉपिक आने में क्या हो जाएगा 11, right? Means 12 अक्टूबर को हम 7 टॉपिक करेंगे हमारा, that is bill. Till then आपको क्या करना है, अपने बिल्स को कलेक्ट करो। जो भी आपकी मार्केट से आप सामान लेके आते हो, शॉपकीपर आपको एक बिल देता है बेटा, उन बिल्स को कलेक्ट करो और वहाँ पे देखो क्या चीज़ कहाँ पे लिखी होती है। प्राइस यहाँ पे, नेम ऑफ द मटेरियल या थिंग वट एवर यू आर टेकिंग वो यहाँ पे, एंड सीरियल नंबर यहाँ पे। उसके बाद मेन चीज़ सबसे फर्स्टली आता है शॉपकीपर का नाम। तो ये सारी डिटेल्स हम जो हैं जब हम टॉपिक करेंगे तब स्टडी करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अप्लाई द ऑपरेशंस ऑन द अमाउंट, राइट। सो द एक्सरसाइज 12.1 इज लाइक दिस। See, there are some given operations on money or operations on amount. First one is addition of two amounts of money. If we know two or more amounts of money and wish to know the total amount, then we add the two amounts of money. Simply given है, अगर आपके पास 2 अमाउंट गिवन है और आपको टोटल फाइंड आउट करना है बोथ द अमाउंट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल एड दैट अमाउंट, राइट। हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको ऐड करेंगे। आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अमाउंट्स ऑफ मनी। सो अगेन सोचो आपके पास 2 डिफरेंट अमाउंट्स हैं, फर्स्ट 100, सेकेंड 150। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। After this, multiplying an amount of money by a number. If we know the cost of an item and wish to know the amount needed for given number of items, जैसे अभी हम यूनिटरी मेथड में करते थे बेटा, सेम दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का अमाउंट पता है, अगर आपको उसी टाइप की एक चीज़ का अमाउंट पता है, जैसे अभी हम मार्कर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस मार्कर का एक मार्कर का प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है, एंड आपको ऐसे 4 मार्कर्स परचेज करने हैं, तो आप 4 मार्कर्स का प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल्स टू ₹100, राइट। टू नो द अमाउंट नीडेड फॉर गिवन नंबर ऑफ आइटम्स, देन वी मल्टीप्लाई द कॉस्ट बाय द
नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस डिवाइडिंग एन अमाउंट ऑफ मनी बाय अ नंबर। मैनी की गिवन है और आपको 1 की फाइंड आउट करनी है, जो हमने यूनिटरी मेथड में भी किया था। पहले हमें मैनी की गिवन है, फिर हम 1 की फाइंड आउट करेंगे। देन व्हाट वी विल डू, अमाउंट डिवाइड बाय विद द नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर दिस? नाउ लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज add the following amounts. So firstly we will start with the A part. First question is of add. A part है बेटा rupees 25,367 decimal 62 and rupees 32,267 decimal 65. So if you remembered, I told you in class 4th that wherever decimal used in rupees, it means after the decimal these digit shows us पैसे। ये जो डिजिट है बेटा डेसिमल के बाद की हमें क्या बताती है, हाउ मेनी पैसे आर देयर, राइट। सो आप ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है। एडिंग में फर्स्ट नंबर आइदर दिस और दिस, राइट एज इट इज। सो वी विल टेक फर्स्ट दिस 2 5 3 6 7 डेसिमल 6 2, राइट। उसके बाद जब आप सेकेंड नंबर अरेंज करते हैं तो बेटा मैंने पहले भी बताया, अब फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डेसिमल को जो है वो डेसिमल के नीचे ही लगाओगे। डेसिमल अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर इस डिजिट में गिवन होता तो आपको क्या करना पड़ता कि अपने नंबर को डेसिमल से पहले ही अरेंज करो। क्लियर माई पॉइंट? यू हैव टू वेरी केयरफुल विद द डेसिमल। अगर आप डेसिमल का ध्यान नहीं रखोगे बेटा तो आपका कंप्लीट आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। 6 5, लास्ट से स्टार्ट करो, 7 6 2 2 3, सिंपल। नाउ प्लस 5 + 2 7, 6 + 6 12, 2 विल बी हेयर एंड 1 गोes कैरी। डेसिमल ये भी आपका रुपीज़ है और यहाँ भी जो आपकी यूनिट यूज़ होगी वो रुपीज़ होगी। नाउ 7 + 7 14, 14 + 1 15, 5 विल बी हेयर अगेन 1 गोes कैरी। नाउ 6 + 6 12, 12 + 1 13, 3 विल बी हेयर अगेन 1 गोes कैरी। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7 and 2 + 3 5. So amount is rupees 57,635 decimal 27, or you can say 27 paise. Once again beta, always take care of the decimal. If decimal is given in the question, then you have to be very careful with this. After this, second one is B part, rupees 4578 2000 and rupees 3123 6000। देखो यहाँ पे जो है वो डेसिमल गिवन नहीं है, राइट। और अगर डेसिमल गिवन नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। 4 5 7 8 2 1 2 3। क्लियर? नाउ अबाउट दिस वन, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट फ्रॉम द लास्ट 0 0 6 3 2 1 3,
sorry, there, see, only by visibility also I put the mistake. Now 6,000. You have to be very careful when you are arranging these digits. 3, 2, 1 and 3 plus. Now you will add yourself. Right? See, I will tell you for one question of every part, like how you will add, how you will subtract. After that, these parts you have to do yourself, because I think it is very easy. You have done this in 4th class also. After this, C part. Now the 3 numbers are there, or you can say 3 amounts are there, 3 different amounts. तो आप इनको कैसे अरेंज करेंगे बेटा? वहाँ पर भी आपका सिंपल, जैसे अभी हमने अरेंज किया वैसे ही अरेंज करना है. जस्ट यू हैव टू टेक केयर अबाउट द डेसिमल्स. सी पार्ट में आपका डेसिमल है. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अरेंजिंग द नंबर्स. राइट. डी पार्ट, that is without decimal, you can do easily. Now come to the second one. Subtract the following amounts. Now adding is over, only 4 questions are there. Now come to the second one. In second, what you have to do, just subtract the amounts. So subtract में तो बेटा आपको पता है कि फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि आप स्मॉलर में से ग्रेटर तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. नाउ फर्स्ट इज ₹10,413.94 फ्रॉम ₹96,792.76. राइट. सो देखो फ्रॉम गिवन है, इट मीन्स दिस विल कम फर्स्ट. ₹96,792.76. नाउ डेसिमल 94,31401. नाउ सब्ट्रैक्ट. 6 minus 4, 2. 7 minus 9, can't subtract. 17 minus 9, 8. डेसिमल, यहाँ से हमने कैरी लिया था, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया आपका 17. नाउ अगेन वी विल टेक इट कैरी. 11 minus 3, 8. 8 minus 1, 7. अगेन 7 minus 4, 3. 6 minus 0, 6, and 9 minus 1, 8. So your answer is 86,378.82. Clear this? Simply आपको क्या करना है, subtract करना है. Now in the B part also you have to just subtract. Come to C part बेटा. From the sum of this and this subtract this one. मीन्स फर्स्टली हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है सम के साथ. फ्रॉम द सम मीन्स पहले आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे. लेट्स सी हाउ यू विल डू दिस. सी पार्ट. सम ऑफ ₹421,500 and ₹23,5,100. सो सम फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें ऐड करना है. 0, 0. 5 plus 1, 6. 1 plus 5, 6. 2 plus 3, 5. 4 plus 2, 6. 6,56,600. फ्रॉम दिस, अब इसमें से आपको वो डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है. इट मीन्स हम क्या लिखेंगे इसको फर्स्टली. 6,56,600 and that number is 5,03,490. सब्ट्रैक्ट करना है. 0. 10 minus 9, 1. ये क्या हो जाएगा 5. 5 minus 4, 1. 6 minus 3, 3. 5 minus 0, 5. And 6 minus 5, 1. And this become
1,53,110। सिंपली कुछ नहीं था, आपको बोला था फ्रॉम द सम ऑफ, मीन्स क्या करना है हमें, फ्रॉम द सम ऑफ मीन्स फर्स्टली हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है एंड जो आपको थर्ड नंबर गिवन है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो सेम ऐसे ही आपका डी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस मच अमाउंट फ्रॉम द सम ऑफ, मीन्स अब आप फिर से क्या करेंगे, उन दोनों लास्ट जो 2 नंबर्स हैं फ्रॉम द सम ऑफ, मीन्स इन दोनों के सम में से, मीन्स जो ऐड करने पे नंबर आएगा उसमें से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस अमाउंट। क्लियर दिस how you will do the subtraction topic. Now come to multiply. Come to the multiply. How you will multiply the following amount. तो आई डोंट थिंक सो मल्टीप्लाई में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी बेटा। सिंपली क्या गिवन है देखो, ए पार्ट है ₹7,36,200 बाई 12। तो आप क्या करो, जैसे सेम आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आ रहे हो वैसे ही करो। 2 मल्टीप्लाई विद 0 0, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 गोes कैरी, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 2 7 ज़ा 14 क्रॉस 1। सबको पता है जब हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इट मीन सेम नंबर, 1 3 ज़ा 1 7 ज़ा प्लस 0 0 4, 2 + 2 4, 7 + 6 13, 1 goes carry, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 1 + 7 8 and this is your amount 88,34,400। क्लियर। मल्टीप्लाई में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ही नहीं बेटा, बहुत सिंपल सा है। जैसे आप सिंपली नॉर्मली मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है। नाउ इफ़ द अमाउंट इज़ गिवन इन पॉइंट्स देन हाउ यू विल डू दैट। अगर आपकी जो अमाउंट है, जैसे आपका बी पार्ट है, उस बी पार्ट को अगर आपका अमाउंट पॉइंट्स में गिवन है देन हाउ यू विल डू, दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन फॉर यू, बट फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ अ वेरी सिंपल। क्या करो बेटा, आप ये सोचो कि डेसिमल है ही नहीं, आप नंबर को ऐसे लिखो 9 1 मल्टीप्लाई विथ 14, राइट। नाउ थिंक अबाउट, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो मैं यहाँ नंबर लिखने जा रही हूँ दैट इज़ करेक्ट, यू हैव टू जस्ट थिंक। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आपका नंबर आता है इन दिस, राइट, आपका इतना बड़ा आंसर आता है। इस आंसर को अब आप डेसिमल में वापस से कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम भी कितने डिजिट्स लगाते हैं, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाते हैं 2, 5 4 6 7 8 9 4, ये आपका नंबर है, आंसर है, मीन्स जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आया प्रोडक्ट। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स है, हम यहाँ से भी लास्ट से 1s 10s, दैट विल बी योर आंसर, राइट। यही आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन करो, आफ्टर दैट यू विल नोज व्हाट विल बी द आंसर। आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लो एंड पुट द डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, अगर 3 होती तो हम 8 को भी काउंट करते उसमें। नाउ मल्टीप्लाई द सम ऑफ, अगेन इन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो विद 20। आफ्टर दैट डी पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मीन्स ये कहाँ आएगा, फर्स्ट पे, एंड दिस विल सेकेंड, एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय 35। मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसको क्या करना है, आपको 35 से मल्टीप्लाई। देखो जैसे हम ऐड करते हैं तब सम आता है, वैसे ही बेटा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या आता है, डिफरेंस।
what come? Difference, right? Now after this multiplication is over, come to division. डिवीज़न में आपको डेसिमल गिवन है, जैसे यहाँ पे है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर आता है उसमें लास्ट की 2 डिजिट में डेसिमल पुट करो, लास्ट की 2 डिजिट्स में डेसिमल. क्लियर दिस वन? नाउ सी पार्ट, डिवाइड द सम ऑफ. अगेन इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 17 से डिवाइड करो. डी पार्ट, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ. इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अब देखो यहाँ ये गिवन नहीं है कि आपको किस नंबर में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ये बिगर नंबर है, दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट वन, इस नंबर में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो भी आपका डिफरेंस आता है दैट विल यू विल डिवाइड विद 20. क्लियर दिस? This is our exercise 12.1. If in this exercise anyone having any problem in any question, you can comment and ask. Now for the after this next lecture we will do the word problems, that is exercise 12.2. Clear everyone? So if anyone having problem, you can comment and ask.